سندھ کی تو سندھ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم کو چھوڑ کر اگر پہلے کی بات کریں سینکڑوں سال پہلے کی، تو اس وقت بھی سندھ معاشی اور اقتصادی اعتبار سے دنیا سے منسلک تھا اور کاروبار اس کا چلتا تھا۔ ابن بطوطہ جو کہ ایک بہت بڑے سیاح ہیں، ابو محمد بن ابن بطوطہ مراکش کے رہنے والے تھے، اور دنیا انہوں نے سفر کی، سندھ میں بھی وہ آئے تھے۔ سندھ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اور بہت سارے شہروں کو انہوں نے، سیون کو بھی دیکھا اور بہت سارے شہروں کو دیکھا، تو وہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے ملتان کے گورنر کے ساتھ مل کر دریائے سندھ جہاں ڈیلٹا ہے، جہاں لاہری بندر ہوا کرتا تھا، وہاں پر اس کو دیکھنے کا انہیں موقع ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ آج سے سینکڑوں برس پہلے 60 لاکھ دینار سالانہ محصول جو ہے، ٹیکس جو ہے، وہ سندھ کو اس لاہری بندرگاہ سے وصول ہوتا تھا۔ تو وہ خوش قسمت ممالک ہیں جن کے پاس بندرگاہ ہے، اور سندھ ان خوش قسمت ممالک میں سے ایک بہترین صوبہ ہمارا، جہاں پر ہمارے پاس 2 بندرگاہیں ہیں، اب تو گوادر بھی ہو رہا ہے۔ تو تجارت اور جو ہمارے سیکرٹری صاحب نے جو چیزیں کہیں، لیکن آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات ہوں گے، تو آپ کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ مختصر اور ٹو دا پوائنٹ، اور پھر ریپیٹ نہ ہو وہ سوال، یہ تھوڑی سی کوشش کیجیے گا۔ تو موجود مہمانوں سے گزارش کریں گے کہ وہ جو سیکرٹری صاحب نے گفتگو کی اس سے متعلق اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیں۔ پاکستان ایگریکلچر کنٹری بھی نہیں رہا، ایکسپورٹ پروموشن بیورو جو ہے ختم کر دیا گیا، ٹریڈنگ کنٹری بنا دیا گیا، انڈسٹریز کا حال آپ لوگ خود جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سرکل بنائیں، اگر مختلف اداروں کا ہاتھ میں ہاتھ پکڑیں، ایک کوآرڈینیشن ہو، پھر ایکسٹرنل فورسز، پھر انٹرنل ایشوز، کانسیپٹ دے رہا ہوں صرف میں، جو کہ آپ کو مجھ سے زیادہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ سازگار ماحول میں انفلوئنس اتنا ہے کہ اب سی پیک سے دیکھ لیجیے آپ کی انڈسٹری کو کیا نقصان ہوگا۔ ویئر ہاؤس بن جائیں گے، لیبر بن جائیں گے، اسکل پرسن یہاں پھر بھی ڈیولپ نہیں ہوگا۔ میں ایجوکیشنسٹ ہوں، مجھے بھی آپ نے نشاندہی کی کہ ایجوکیشن سے ہمیں ٹیکنوکریٹس یا اس ٹائپ کی ایجوکیشن کی اسکل پروگرام میٹرک ٹیکنیکل ہونی چاہیے، جو کہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ سوال یہ ہے کہ میڈیم اور اسمال انڈسٹریز کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے زون بنا کر اس پہ اتنا انٹرنیشنل پریشر نہیں ہوگا، فری زون تو بنائیں، اس کو آپ اس کو ریکگنائز تو کریں۔ جو گھر میں بنانے والے، چاہے وہ چوڑیاں بناتے ہیں، چاہے چھوٹا کام کرتے ہیں، اس میں اس کو اگر آپ انکریج کریں گے، اس کو کریں گے، اس طرح کی پالیسیز آپ بنا سکتے ہیں، اگر کوئی بنائی ہے تو آپ بتائیے، تاکہ جو ہے یہ چھوٹا چھوٹا بزنس ہی جو ہے بہت بڑا ولیوم بن سکتا ہے، بہت بڑی جابس کریٹ کر سکتا ہے، محلے کے لیول پر، ایریا کے لیول پر، ٹاؤن کے لیول پر۔ پلیز اس میں کوئی اگر آپ کی کوئی پلاننگ ہے، کوئی آپ چیز ہمیں آگاہی فرمائیں۔ تھینک یو۔ جی سر، اور کوئی دوست یہاں سے آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے تو؟ مویشی میر صاحب۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر نسیم الغنی سیفر صاحب، بہت ہی برائٹر پکچر جو ہے وہ آپ نے پیش کی ہے، اور آپ کی تقریر سن کے تو لگ رہا ہے کہ سندھ میں بڑی، خاص طور پہ جب سندھ کا نام آتا ہے تو یقیناً کراچی اور انٹیریئر سندھ دونوں آتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ بہت ریولوشن ہے انڈسٹری میں۔ لیکن میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا میں جتنی انڈسٹریل اسٹیٹس کو ہم نے وزٹ کیا ہے، ان کو جا کے ایسے نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایسے کوئی آثار قدیمہ میں آ گئے۔ کراچی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں جا کے ایسے لگتا ہے کہ ہم 18ویں صدی میں آ گئے ہیں، وہ خواہ پرنگی انڈسٹریل میں جائیں یا دوسری میں جائیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر کی وہاں پہ پوزیشن ہوتی ہے، خاص طور پر جو رینسم کے کیسز یا باقی بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، اور ایون کہ وہاں پہ لوگ سیلری لے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ لوٹے جاتے ہیں، ان کو کس طرح جو ہے اس کا کوئی میکنزم کس طرح آپ لوگ بناتے ہیں۔ اور جو میرے دوست نے بات کی جو خاص طور پہ ہینڈی کرافٹ سے بہت بڑا ہے، سندھ کے اندر بھی ہے اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہے، ان لوگوں کی مارکیٹنگ جو ہے وہ بڑی کمزور ہے، وہ بیچارے اس لیول پہ نہیں ہے کہ اپنی پروڈکٹ کی صحیح پرائس لے سکے۔ تو گورنمنٹ نے ابھی تک ان کی سرپرستی میں کیا کام کیا ہے کہ ان کی پروڈکٹ جو ہے، مثلا رنگی جو ہے وہ کراچی میں تو 10,000 کی بھی مل رہی ہے،
لیکن جو بیچارہ بنا رہا ہے وہ پتہ نہیں اس کے کتنے کم پیسے جو ہے نا وہ لیتا ہے. تو جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو بڑی اس کی اجرک ہے یا اور چوڑیاں ہیں, ان لوگوں کی مارکیٹنگ کو آپ کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں, یا ہم اس میں کوئی برانڈنگ کا کانسیپٹ لا سکتے ہیں, تو اس میں انڈسٹریل منسٹری جو ہے وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ میری بھی ریسنٹلی پوسٹنگ ہوئی ہے کرنگی میں. تو کرنگی کا ایک لارج ایریا جو انڈسٹریل ایریا وہ میرے انڈر بھی ہے. ایک تو وہاں پہ یہ جیسے کہہ رہے چوری چکاری ہے تو بہت کامن سی چیزیں ہیں. انفراسٹرکچر کے حوالے سے روڈس ہم جس طرف بھی جاتے ہیں ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ غالباً انڈسٹری منسٹری کا کوئی جو آپ کے لوکل باڈیز ہوں گے ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوتی ہے, تو اسی کے بعد ہی پھر یہ چیزیں شاید بنتی ہوں گی. تو اس طرح بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ جو انڈسٹری ہے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ شفٹ ہونا شروع ہوگی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میرے ہی اپنے ایریا میں ایک بہت بڑا بزنس یونٹ تھا لوڈس کے نام سے. یہ ہیوی جو وہیکلز ہیں ان کے اسپیئر پارٹس بناتا تھا. تو انہی دو تین چیزوں کی وجہ سے وہ یہاں سے شفٹ کر گئے. ایک بہت بڑا یونٹ سینگر کے نام سے آپ فیملیئر ہیں اس سے بھی, تو وہ یہ ساری اسی صورتحال کی وجہ سے وہ یہاں سے شفٹ کر کے لاہور چلے گئے. تو اب کراچی کی انڈسٹری ایک تو حالات کی وجہ سے انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہے, گورنمنٹ ان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں دے رہی ہے, تو وہ آہستہ آہستہ سے یا تو پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور ہیں اور یا پھر یہاں سے لاہور چلے جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ ظاہری بات ہے وہ جب ان کو فیسلٹی نہیں ملے گی تو ان کے پاس دے نو آپشن ادر دین بھی موو کریں گے یہاں سے. تھینک یو. ابراہیم خوش صاحب. میں ٹائم بہت تھوڑا ہے, ادھر ایک دو جو کمی محسوس ہوئی. ایک حمید بھٹو کا تعارف بہت مختصر ترین کیا گیا ایکسیلنس ایوارڈ کے حوالے سے, جیسے صرف اسی کی بہت بڑا عزت مآب ادارہ ہے ایکسیلنس ایوارڈ. لیکن حمید بھٹو ہمارے چیئرمین بھی ہیں, ساری سندھ کے چیئرمین ہیں آرٹسٹوں کے, اور بھی ان کے بہت سارے تعارف ہیں. آخری تعارف ان کا یہ بھی ہے کہ شادی شدہ ہیں. ادھر آتے ہوئے جو موسم چل رہا ہے بہت سرد موسم چل رہا ہے, لیکن کالے کوٹوں نے بہت گرم کر دیا. ادھر زیادہ کالے کوٹ دیکھ کے ڈر لگ رہا تھا. میں پروفیسر رہا ہوں, اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ سندھ کا تعارف ایک نام انڈس کے حوالے سے بھی ہے. انڈسٹریز کو کہا جاتا ہے. انڈس کیوں کہا جاتا ہے؟ ادھر 99.99 معزز مہمان کو پتا ہوگا کہ سندھ کو انڈس کیوں کہا جاتا ہے, لیکن جو 1% 0.1% کہوں وہ ہے ان کو ہو سکتا ہے نہ ہو. مختصر ترین تعارف کروائے دیتا ہوں. میری اماں ہے سندھ, تو کیونکہ انڈسٹری سندھ سے شروع ہوئی, اس دھرتی سے شروع ہوئی. سندھ دھرتی ماں ہے سویلائزیشنز کی. میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. ادھر سے سامان جاتا تھا, دریائے سندھ کے تھرو سمندر کی معرفت جاتا تھا. ان کو ونجارا, ان کو واپاریوں کو کہا جاتا تھا. تو انڈسٹری کیونکہ ادھر سے شروع ہوئی, پورا نام لینے کے بجائے جیسے مختصر نام لیا جاتا ہے انڈس. یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ انڈس سے آئی ہے. انڈسٹری نہیں کہتے تھے, انڈس. انڈس کا انڈرسٹوڈ معنی یہی تھا کہ انڈسٹری سے آئی ہے اور سندھ سے آئی ہے. سندھ کا تعارف ہزاروں سال پہلے یہ انڈسٹری ادھر سے شروع ہوئی. اور ساتوں صاحب پہ ہمیں فخر ہے. آج اگر پرانے قدیم محاوروں کو لیا جائے تو بادشاہ بیٹھے ہیں میرے سامنے انڈسٹریز کے, انڈس کے. اور ایک اور بات جو میں مسلسل ایکسیلنس ایوارڈ میں آ رہا ہوں, روشن شیخ صاحب کا لیکچر سنا تھا, سائیں کا جعفرانی صاحب کو اگر میں ہمت کر کے جرأت کر کے کہوں دوست ہے تو میں حق جانب ہوں گا. ایسے لوگوں کو
हमीद साहब में अहलियत है, यूनिवर्सिटी में लेक्चर कराने चाहिए कि हमारी आइंदा नस्लों को गाइडेंस मिले, वो जैसे हम हासिल कुछ कर रहे हैं हमारी नई नस्ल हासिल करें इन लोगों से। और नहीं, मैं वजीर आला होता तो महीने में कंपलसरी करता है ऐसे लीजेंड लोगों का लेक्चर कराने का, हमीद साहब को उनका चेयरमैन बनाता कि भाई इनके लेक्चर कराओ, लोग हमारे आगे बढ़े, बच्चे हमारे आगे, मुझे तो है ही है। सिंध ने कैसे दुनिया को आगे बढ़ाया वो बात रह जाएगी। दुनिया एकदम तेज क्यों हो गई, पत्थर के दौर से एकदम तेज। सिंध ने वीर भैया फिर थोड़ी याद करो, टाइम मिला लेकिन सारे पहले हमारे रहे प्यार से तो टाइम हो जाए खत्म। भैया ने दुनिया को बहुत तेज तरीन कर दिया। आज भी बेलगाड़ी में, मोहनजोदड़ो में, लाड़काना में वो बेलगाड़ी देखी जा सकती है, हमीद भुट्टो साहब के गांव में वो देखी जा सकती है। जिन्होंने इर्तिका पे चले, जिन्होंने उस भैये को मजीद तरक्की दी वो आगे निकल गए, जिन्होंने नहीं दी वो पीछे रह गए। भैये ने बहुत तेज बना दिया। मैं यही कहूंगा। और आखिर में साईं के हवाले से, इनसे नंबर से आप दे दिया, मैं भूल जाऊंगा और आपको हमारे फंक्शन होते हैं उसमें जरूरी है आप। लतीफ साईं ने सिंध में म्यूजिक भी दिया है। मोहनजोदड़ो में जो चीजें मिली है साईं सरदार साहब, उन्होंने डांसिंग गर्ल मिली है जगह लोक फनकारा हुई। भाई असांजा इच्छी वेठान साईं जाफरानी साहब भी वो म्यूजियम में भी रखी हुई, लेकिन वो चोरी हो गई, पता नहीं अमेरिका में है, इंग्लैंड के म्यूजियम में है या इंडिया के म्यूजियम में है। मोहनजोदड़ो में सिर्फ उसकी शेप पड़ी हुई है जो एवार्ड के तौर पे केटीएन वाले देते हैं हम फनकारों को। लतीफ साहब ने इस हवाले से कहा, मैं ये आखिरी शेर करके हम साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, आप कहते हैं मैं मुख्तसर बात करूं, बीवी बात नहीं करने देती घर में। वो लतीफ साहब ने कहा है नका कुन फयकुन हुई, कौन सा दौर, कौन सा सम्मान, कौन से टाइम की, ये साहब हिसाब बैठे हैं, ये थे सुने, उस दौर की बात कर रहे हैं लतीफ साईं। नका कुन फयकुन हुई, अभी कुन फयकुन हुई नहीं थी, फरमाई नहीं गई थी। नका कुन फयकुन हुई, नका उभन भूल, नहीं आसमान था न जमीन थी। नका कुन फयकुन हुई, नका उभन भूल, तेहा आगे हूं, लतीफ साईं फरमा रहे हैं, तेहा आगे हूं, हुई सुई तंग तलू जी। मौसीकी उस वक्त से है, मौसीकी न हो, रिदम न हो दुनिया में, कायनात में, ये दुनिया एक पल में खत्म हो जाए। सरमार खुद साहब ने कहा कि कुछ बीवी का जिक्र भी आया और हमीद साहब का भी जिक्र आया, तो कितना शरीफ शख्स है बीवी पे फिदा है, कितना शरीफ शख्स है बीवी पे फिदा है, उस पर कमाल ये कि अपने पे फिदा है। की बात है वो दूसरी है। और हमारा दुनिया में जो तरक्की हुई है सिर्फ दो चीजें हैं, एक तो पहिया और दूसरा जो कंप्यूटर की इजाद हुई। इस पहिए को और इस कंप्यूटर की इजाद को अगर दुनिया से निकाला जाए तो फिर दुनिया को आप दोबारा पत्थर के दौर में देखेंगे। और सिंध को यह आजाद हासिल है, सिंध की ये तहजीब जो मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं, बहुत सी चीजें वहां से मिली। ये जो अजरक आज हमने अपने मौजूद मेहमान को उड़ाई है, तो आज से 5000 साल कबल भी सिंध में अजरक की तैयारी होती थी और सिंध में अजरक को इस्तेमाल किया जाता था। किंग प्रीस्ट आपने देखा होगा, उसने भी एक चादर ओढ़ी हुई है जो मूर्ति मिली है, और उस चादर की ओढ़ने का रंग और ढंग भी जो है वो मौजूद अजरक से मिलता है। संबारा का जिक्र किया डांसिंग स्टेचू का, तो वो संबारा भी इस बात की दलील है कि आज से हजारा साल कबल सिंध में इल्म, अदब और मौसीकी मौजूद थी, क्योंकि बगैर मौसीकी के रक्स मुमकिन नहीं है। तो ये इस बात की दलील है कि आज से 5-6 हजार साल कबल सिंध में मौसीकी भी मौजूद थी, शायरी, इल्म, अदब मौजूद था। जी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स के ऊपर कुछ काम करने की जरूरत है इंडस्ट्री में, तो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं? ये तो ठीक है, जो हमारे लोकल बॉडी से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, जिस तरह से हमारे यूपीआई के दोस्त ने कहा, वो तो ठीक है, वो कभी कभी 70 साल में ठीक नहीं हुआ, उनको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे भी कुछ जल्दी कोई ठीक करने में। इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो नजर आती है। उसकी वजह ये है
کہ جس طرح سے ہینڈ کرافٹ کی بات ہو رہی تھی، ہینڈ کرافٹ سے جب میں اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا تب میں نے بڑا سنا کہ یہاں سے بڑا ایکسپورٹ ہوتا تھا مال، باقاعدہ یو ایس اے میں جایا کرتا تھا، کینیڈا میں جایا کرتا تھا، باقاعدہ ہمارے رشتے دار ہیں وہ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور وہ سندھ میں لوگوں سے گھروں میں جو کام کرتے ہیں وہ کام کر کے لے کر آتے تھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آگے آنا ہوتا ہے، اور ایک ڈیکیڈ کے بعد یہ ایس ایم ایز میں چینج ہو جاتے ہیں جب ان کے بچے اس انڈسٹری میں آتے ہیں. مگر ہم نے ان کو موقع دینے کی جگہ ہمیشہ دبایا. یہ ہمارے معاشرے کی بدقسمتی رہی کہ ہم نے ہمیشہ کمزور کو اور زیادہ کمزور کرنے کی کوشش کی. مگر کیا آیا گورنمنٹ کے لیول کے اوپر بیٹھ کر کچھ اس طرح سے ایسے اقدامات پلانڈ ہیں کہ ان لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی ایک چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگائیں؟ کیونکہ ریولیوشن تب آتا ہے جس طرح سے چائنا کے اندر آیا، جب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور بڑے ریونیو اس سے جنریٹ ہوئے، جس سے ملک کو بھی فائدہ ہوا، صوبے کو بھی فائدہ ہوا. آج وہ ایک اچھا ایک اپنا امیج بنا کے پوری سوسائٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو کیا آیا ہمارے پاس بھی ایسے کچھ پلانز موجود ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر، یا ہم لوگوں نے پھر جس طرح سے 70 سال گزارے ویسے ہی رینگتے گزارنے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. लाड़काने जी जेकी सीमेंट इंडस्ट्रीज जेकी स्टेट आहे उहा सफ़ा सी तबाह थी वई आहे. मुंहिंजे अचण लाइ शायदि को उतां जो को भलो थी पए, ॿियो त हाणे मां ज़िक्र कोन कंदुसि. इंतिहाई तबाह शुदा आहे. रियली साईं उते पतवाड़ मूं फ़क़ीर जा नंढा आहिनि, पर उते हाणे मां कुझु करे बि नथो सघां. सची ॻाल्हि इहा आहे साईं. ऐं सोचां थो त विकिणा रस्ता भॻा पिया आहिनि. प्लीज़ थैंक यू वेरी मच. नवाज़ थैंक यू अमीर साहब. तव्हां सभिनी दोस्तनि खे वॾी महिरबानी. नवाज़. अस्सलाम वालेकुम. नसीम अहमद भट्टू, नॉन फाइनेंस डिपार्टमेंट सां रिलेटेड आहियां. थोरा हुया ऐं सभिनी दोस्तनि खे वेलकम कयां थो लीग ऑफ मेंबर एक्सीलेंसी अवार्ड. जीअं त साईं मंजूर साहब जन बि फरमायो त काफ़ी लेट करे असां पहुतासीं. सभु साईं मोतबर शख़्सियतुनि जूं जेके तकरीरूं उन्हनि में असांजी शमूलियत घटि थी, पर पोइ बि सभिनी दोस्तनि जा ख़्याल ॿुधी करे, स्पेशली साईं ख़ुश्क साहब जा ख़्याल ऐं हेॾां ई साईं जेको आहे सो उन जा ख़्यालात हुया त इंडस्ट्री ते फोकस कयो वञे. हालांकि ॿिया जेके बि पंहिंजो साईं जन फरमायो रिलेटेड क्वेश्चन्स हुया कोन, हिन जे करे साईं साधू साहब जन इंडस्ट्रीज़ सां वाबस्ता आहिनि, उन्हनि सां इंडस्ट्रीज़ जो ई कोई यानी कि ख़्याल रखिजे हा त जंहिंजो कुझु भलो बि थी सघे हा. सो साईं जन खे गुज़ारिश इहा आहे त जीअं मंजूर साहब जन फरमायो त असांजियूं इंडस्ट्रियूं तबाह थी चुकियूं आहिनि ऐं उन्हनि में को बि यानी कि इम्प्रूवमेंट कोन्हे का, लिहाज़ा साईं अब्दुल नसीमुल हसन सतो साहब जन खे गुज़ारिश कंदासीं त असांजे सिंध जे इलाइक़नि में जेके बि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आहिनि तमामु जेको आहे सो कमज़ोरी ऐं बिल्कुलु ई जेको आहे सो पुअर कंडीशन में आहिनि, उनखे जेकॾहिं इम्प्रूवमेंट ऐं उनजी बहितरीअ लाइ क़दम खयां वञनि त असां सिंध वासियुनि ऐं ग़रीबनि ऐं बहितर पोरियतनि जो भलो थी सघे. वॾी महिरबानी. और सतो साहब की जॉब के हवाले से रेलिवेंट नहीं थी, लेकिन बहरहाल बातें सब अच्छी थी, रेलिवेंट नहीं थी. मेरी 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं. एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसकी कंटिन्यूएशन नहीं होती. कोई या दूसरा आता है उसको रोक देता है. ये हमारा नेशनल इशू है कंटिन्यूएशन का. और दूसरा ये होता है कि ओनरशिप हम नहीं देते किसी चीज़ की. अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि जी फलां की वजह से खराब हुआ. तो एक तो ये है कि हमें एज ए गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूएशन को भी इंश्योर करना चाहिए और जो प्रोजेक्ट्स हम ले आए तो उनमें ओनरशिप होनी चाहिए. नसीम अली साहब ने एक खूबसूरत बात की थी अपना लोगों को, वर्कर्स को, स्किल वर्कर्स को मुल्क से बाहर भेजने की. वो एक हमारा बहुत बड़ा इशू है और चूंकि ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, ओवरसीज और लेबर मिनिस्ट्री वगैरह का सब्जेक्ट है जो बाहर भेजते हैं, सूबाई हुकूमत का नहीं है. लेकिन फिर भी इस फोरम के हवाले से मैं बात करूंगा कि इनको चाहिए, इनकी मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो यकीनन उनसे टेकअप करें और वर्कर्स को बाहर भिजवाएं. लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा इशू ये है
कि जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन के इदारे हैं वो जो तालीम देते हैं वो अमली तालीम नहीं होती, वो सिर्फ सर्टिफिकेट देते हैं, उनका किसी इंडस्ट्री के साथ कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो सर्टिफिकेट ले आते हैं उनको काम नहीं आता प्रैक्टिकली। तो इसमें मेरी एक सजेशन है कि अगर ऐसा हो कि जो हमारे वर्कशॉप्स में जो बच्चे काम करते हैं, लड़के काम करते हैं, यंगस्टर्स काम करते हैं, या हमारे जो इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, उनकी सर्टिफिकेशन का कोई प्रोग्राम बन जाए, क्योंकि वो प्रैक्टिकली वो काम कर रहे होते हैं, उनको काम आता है, लेकिन इशू ये होता है कि उनके पास मैट्रिक जो है नहीं है, और चूंकि मैट्रिक नहीं है तो इसलिए उनके पास कोई और डिप्लोमा वगैरह नहीं बनता। तो इस तरह का कोई प्लान अगर हो जिसमें मैट्रिक को कंडीशन को वेव किया जाए और उनको डायरेक्टली कोई डिप्लोमा दिया जाए, और इस तरह के अगर उनको डिप्लोमा मिलेंगे तो वो शायद बाहर हम उनको भेज सकेंगे, एक्सपोर्ट उनको कर सकेंगे। एक और चीज जो मेरे नजदीक है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि मेरा ख्याल है वो मेन इंडस्ट्री सब्जेक्ट से हटके है आपके सब, तो उस पे अगर हम फोकस करें तो वो भी जो है एक अच्छा काम हो सकता है। बाकी तो अगर बातें करने पे बैठ जाए तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जो दो तीन इन्होंने जो मसाइल का जो जिक्र किया वो भी बहुत इम्पोर्टेंट थे। एक तो बाहर से हमें कोटा नहीं मिलता मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, एक जैसे एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, दूसरा हमारा जो है अपना ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जैसे सियालकोट में और इधर उधर जो है बच्चों से काम करवाते थे, तो या स्लेव लेबर का जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से, तो इन चीज़ों को यकीनन इनकी मिनिस्ट्री देख रही होगी। बहरहाल नसीम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके आने से हम ये समझते हैं कि अपना पूरे सिंध में जितने स्मॉल इंडस्ट्रीज के प्रोजेक्ट्स हैं और जो साइड प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट्स हैं और बाकी जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो सारे जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनका बेहतर होगा और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करना शुरू करेंगे। कैप्टन साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। एक छोटा सा सजेशन है मेरे एंड से, अगर आप अपने फर्म से इसको आगे पहुंचा सकें। एक्चुअली सेम गवर्नमेंट को हैवी व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग सेंटर्स जो है ना, इस तरह की कोई एक्टिविटी की जरूर प्लान करनी चाहिए फॉर द यूथ, जो कि आइंदा आने वाले सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर एक अच्छे एजुकेटेड किस्म के जो हमारी यूथ है उसमें आने वाले लड़कों को आने वाली जो है ना व्हीकल जिस हम लोग देखते हैं एज ए ट्रैवल कर लेते हैं, उस एक कॉन्सेप्ट को चेंज करके इसको यूनिफॉर्म और ऑर्गेनाइज अंदाज में सामने लाया जा सकता है इससे। तो इस तरह का अगर कोई अपने फॉरम से अगर आप आगे इसको सजेस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत जो है ना वो अच्छा और बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत बेहतर जो है वो एक अमल होगा। थैंक यू सो मच। नसीम साहब मुझे मुरासन दे रहे हैं, मैं एज एन ऑफिसर साईं जी तमाम खिदमत हैं जितनी भी आप नालो छॾियो अथई। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त साईं जवानी साहब जी चयो त गवर्नमेंट जे तरफ़ां कंटिन्यूटी नथी मिले, जिते कोई प्रोजेक्ट जी संभाल करे थो कंहिं ऑफिसर महिनत थो करे उनजी का पोयां उनखे को टाइम नथो ॾिनो वञे। नसीम साहब ॾाढी जिते बि हुआ ॾाढी कोशिशि सां प्रोजेक्ट सां सोशल सिक्योरिटी में पिणु काफ़ी नालो छॾियो, पर वॾी मुश्किल आहे सिंध गवर्नमेंट जे कंहिंखे चइजे कोई ॿुधण वारो कोन्हे, सुठनि ऑफिसरनि खे छॾनि नथा त उहो कमु करे जेको आहे। ऐं सही न सिर्फ़ु डॉक्टर न सिर्फ़ु ब्यूरोक्रेट आहे, पर जंहिं तरीक़े सां मां साईं खे स्टार्ट कयो हिकिड़ो वॾो हिस्टोरियन बि आहे। साईं खे सिंध जी हिस्ट्री छा पर हर ज़ात ते साईं जो हिकिड़ो वॾो नॉलेज आहे। साईं सां असांजो मुलाक़ात रहियूं आहिनि ऐं मां दुआ कंदुसि त साईं जंहिं डिपार्टमेंट में हाणे कमु करे रहियो आहे अलाह हुनखे कामयाबु करे। वॾी महिरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना मेरी कोई सजेशन है और ना मेरा कोई सवाल है,
मगर मैं ये समझता हूँ कि आज संडे का दिन जो छुट्टी का दिन था और इस तकरीब में शिरकत करके यहाँ से मैं एक चीज़ सीख के जा रहा हूँ नसीम साहब के तवज्जुह से। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं कि हुनरमंद अफराद जो हैं उस हवाले से इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी कि सिंध के ऊपर सुमरो फैमिलीज का 350 साल से ज़्यादा हुकूमत रही, मगर जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, जवाल आया, तो उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में जाके और मुख्तलिफ हुनर पे काम शुरू किया, मगर उन्होंने अपनी कास्ट को अपने से माइनस नहीं किया। और आज भी अगर उन्हें कहीं किसी किस्म का भी वो काम कर रहे हैं तो वो जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम सोमरो आएंगे। बड़े प्राउड की और फख्र की बात है। हमें इस जात पात से निकलना चाहिए और आज जो मैं सीख के जा रहा हूँ कि हमें उन लोगों को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि अगर कोई तरखान का काम कर रहा है, कोई पढ़ाई का काम कर रहा है, कोई किसी भी स्किल से जिनको माहौल के साथ इस माशरे में छोटी लो कॉस्ट के कोमे कहते हैं। देखिए कौम हुनर से और हुनर में और कौम में बड़ा फर्क है। तो अगर किसी की कोई जात पात कोई भी हो, चाहे वो सैयद है, कोई सोमरो है, कोई बलोच है, कोई किसी कास्ट से ताल्लुक रखता है, मगर वो अगर कोई हुनरमंद शख्स है तो उसकी कदर और कीमत हमारी नजर में ज्यादा होनी चाहिए। तो जहां हम ह्यूमन इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो मेरी मतलब यही गुजारिश है कि आज जो हमने सीखा कि हम उन हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई के लिए कोई ना कोई काम करते रहे ताकि वो उस अपनी इंडस्ट्री से जो हुनरमंद अफराद की छोटी इंडस्ट्री है उससे दिल बर्दाश्त ना हो। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी कीमती बात आज इस फोरम से और हमें सिद्धू साहब के तवज्जुह से पता चली। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये इस बात का एतराफ़ करूँ कि आज की इस नशिस्त में कम अज कम मैंने बहुत कुछ सीखा और नसीम गनी साहब ने जो कुछ बताया उसने यकीनन मेरी इंफॉर्मेशन में इजाफा किया है। जहाँ तक इनके मौक़िफ़े के बारे में इन्होंने बताया तो इन्होंने कहा कि हमारे इनके मौक़िफ़े का माजी ताबनाक था, अब जो है कोशिशें हो रही हैं और मुस्तक़बिल ताबनाक की उम्मीदें हैं। कहा यह जाता है हमेशा कि दो चीज़ों के लिए आदमी डेफिनेट होता है, एक होता है पास्ट और एक होता है प्रेजेंट। पास्ट ये कि वो रिकॉर्डेड चीज़ है कि क्या हो चुका है, उसके लिए हम डेफिनेटली कह सकते हैं। मौजूदा के लिए इसलिए क्योंकि हमारे सामने हो रहा होता है। अलबत्ता जो फ्यूचर है उसके लिए हम कोई डेफिनेट बात नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ अच्छी उम्मीद ही कर सकते हैं जिसकी उम्मीद जाहिर की है। बात जो की जमाली साहब ने भी की और यहाँ हुई, मसला ये है कि हमारे यहाँ एक तो राइट मैन एट राइट प्लेस नहीं होता, दूसरी बात ये कि कंटिन्यूटी नहीं होती। अभी मैं सतो साहब से पूछ रहा था कि आपको कितना अर्सा है, वो कह रहे थे 2 महीने, तो मैंने कहा अल्लाह करेगा और 2-4 महीने रहे होता रहेगा ये। अब मसला ये कि सारी बातें इन्होंने बताया कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त से साइट बन गई। मैं रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में और इंटीरियर में भी मेरी पोस्टिंग्स रही हैं, तो मैं 80s की बात बता रहा हूँ। उस जमाने में 7 में भी वो थी सुभान इंडस्ट्रीज स्टेट उसको कहते थे, दादू में भी थी, लाड़काड़ा में भी रह कर आए, वहाँ भी थी। एक जमाने में मैं शराब को था तो जमाने में खरीद कर रहे थे जमीन गन्नो आदम में, शायद वो खरीद कर ली थी। लेकिन मसला ये है कि इसके 25-30 साल गुजरने के बाद भी वो आबाद नहीं हो सकी। अगर फर्ज करें कोई वहाँ 100 भी यूनिट लगने थे तो 2, 4, 5, 6 यूनिट लगे हैं। और मैंने तो उसमें देखा है कि ज्यादातर उसमें या तो फ्लावर मिल होती है या आइस फैक्ट्री होती है, उसमें कोई मुख्तलिफ किस्म की कोई इंडस्ट्री नहीं होती। अच्छा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जरूर आते हैं और आजकल जो बाहर के कवानीन हैं वो हमारे पर लागू होते हैं, तो इस वजह से जो है और एक्सपोर्ट जो है वो कम भी है या मजबूर है वहाँ के लिए। मैं अभी 2 महीने पहले मैंने कहा था तो सब स्टोर्स पे, बड़े बड़े स्टोर्स पे गया। आप टेक्सटाइल में देखिए बांग्लादेश है, जो आप चीज उठाए उसमें बांग्लादेश का टैग लगा हुआ है, इंडोनेशिया का लगा हुआ है, थाईलैंड का लगा हुआ है, कोरिया का लगा हुआ है, पाकिस्तान का नहीं। हालांकि हमारे पास हम तो कार्टन गोरा हमारा कार्टन होता है। अब हमारा ही कार्टन जो है वो चला जाता है बांग्लादेश, वहाँ वो होता है, उसके बाद वहाँ से वो फर्नीचर के वहाँ भेज देते बनाते थे। बल्कि यहाँ पे ये होता है कि यहाँ की चीजें बनी बनाई वहाँ जाती है और वो उसको टैग करके भेज देते हैं। तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम में मसला ये है कि अब नसीम साहब अपने इनकी विल है, कोशिश करेंगे, लेकिन मसला है कि पॉलिसी जो है तो वो बनाती है गवर्नमेंट।
हम तो होते हैं इम्प्लीमेंट करने वाले, लेकिन मसला यहाँ अगर होता है कि पॉलिसी बनने के बाद इम्प्लीमेंट करने भी नहीं दिया जाता, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। अब आप सिल्क सबान इंडस्ट्रीज देखें, बहुत बड़ा अच्छा अदारा था, उसका जो मकसद था काम करने का, अब उसमें मुझे जो अखबारों को पढ़ते रहते हैं वो केसेस भी चल रहे हैं, पता नहीं, जहाँ मेरा ख्याल है कि एक आदमी की जरूरत थी वहाँ 10 आदमी रख दिए गए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। जिस महकमे में बंदों को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम क्या करेगा? फिर ये कि वहाँ जिस आदमी को जहाँ जगह जिस क्वालिफिकेशन वाले आदमी को लगाना चाहिए था, वहाँ मेरे जैसे मतलब एक लेमैन को लगा दिया जिसको कुछ पता ही नहीं। तो पोटेंशियल तो बहुत है, उम्मीदें भी बहुत है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को भी बात समझ में आए और जो आदमी काम करना चाहता है उसको वहाँ काम करने दें, कुछ कंटिन्यूटी हो तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। 70 साल मेरा ख्याल है कि वो आदमी देखता है कि ये मायूसी वाली नजर आती है, कोई चीज अच्छी नहीं का आप वो देख लें। अच्छा, मैं एक बात पूछूंगा नसीम साहब से, वो ये कि मुझे पता नहीं है कि जरूर इस तरह होगा कि आया जो इंडस्ट्रियल जो साइट है या इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ जो प्लाट मिलता है वो किसी मखसूस एक होता है क्राइटेरिया, उसमें मिलता है और उसमें उसी किस्म की इंडस्ट्री लगती है। क्या वो प्लाट किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता है? मैं समझता हूँ नहीं। तो अब वो जो असल मकसद हो जाता है इंडस्ट्री लगाने का, वो डिफीट हो गया। अब मैं पिछले हफ्ते हैदराबाद गया था, तो वहाँ इत्तेफाक से वहाँ साइड की तरफ जाना हुआ, तो वहाँ जो बड़े बड़े प्लाट थे वो तो माल और बुलेवार और फलां और ये वो शादी हाल और वो बन गए, वो तो है नहीं, इंडस्ट्री तो खत्म हो गई। तो उसकी कोई पाबंदी है नहीं है, क्या उसका होना चाहिए? क्योंकि अब तो नई इंडस्ट्री बन रही है। एक नूरियाबाद में हमें बड़ी उम्मीद थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा, लेकिन वो नहीं हो सका। पता नहीं उसमें प्रोग्राम रहा गया था कि इतने अरसे में जो है 5000 यूनिट लग जाएंगे, तो 5000 यूनिट तो मेरा ख्याल 500 यूनिट भी नहीं लगे होंगे। हालांकि वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया गया, मेन रोड है, कराची के करीब है, सब बातें हैं, लेकिन नहीं हो सका। तो आप उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि कोई बेहतरी की बात आए और जो अफसर काम करना चाहता है उसको रहने दिया जाए, बात उसको टारगेट दिए जाए, उससे फिर वो काम किए जाए। टारगेट पे काम के हिसाब से दे रहा हूँ, दूसरा वाला टारगेट नहीं कह रहा हूँ, दिया जाए। मैं मोहम्मद शाहिद साबित, फॉर्मर प्रेसिडेंट नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। इसका मेरा टेक्सटाइल टावर्स इंडस्ट्री से ताल्लुक है, और जैसे अपना सेतो साहब ने कहा कि नूरियाबाद इंडस्ट्री एरिया जो है इस वक्त मेरा भी वन प्रोजेक्ट इस वक्त रनिंग के अंदर है, और हाईवे म्यूनिसिपल हाईवे के ऊपर लकी सीमेंट के ऑपोजिट पे भी एक वर्किंग कर, तो इंशाल्लाह फ्यूचर अच्छा है नूरियाबाद का कि अगर वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए तो उसमें होपफुली अच्छे परफॉर्मेंस मिलेगी। थैंक यू जी। हमारे मौजूद मेहमान मोहम्मद शाह साहब, CEO 3 स्टार, सर जमानी साहब, एडिशनल IGC पुलिस, शम्स जाफरानी साहब, सेक्रेटरी कल्चर रही, साहब का सेक्रेटरी और वहीं से रिटायर हुए, तो रिटायर्ड सेक्रेटरी कल्चर हमारे साथ। उनकी सकाफत के बारे से बहुत सारी खिदमत, मौजूद मेहमान उनको आप जानते हैं। इसके साथ साथ सैयद वकाशिया साहब का MP और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब, और इसके साथ साथ सैयद शाकिर साहब ग्रुप मेंबर पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब, सैयद फराज साहब चेयरमैन USA पार्क ट्रेड डेवलपमेंट और ग्रुप हेड हैं आप नामा साहब के, और यानी भुट्टो साहब जिनकी शख्सियत से आप वाकिफ हैं, और बहुत से हमारे उनकी शख्सियत के चेयरमैन हैं पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के, और इसके साथ साथ मारूफ राइटर हैं, एंकर पर्सन हैं, कॉलमिस्ट हैं। दोस्तों को यहाँ पर जमा किया, और जैसे शम्स जाफरानी साहब ने कहा कि हम कहते कुछ है और कुछ मायने मतलब कुछ और होता है। टारगेट की उन्होंने बात की, तो आजकल बर्फबारी का मौसम भी है, लोग मर के क्रॉस आर मरी भी जाते हैं। तो किसी शायर ने कहा कि जब से सुना है मैंने मरी जा रही है तू, तब से हाल है मेरा कि मरा जा रहा हूँ। तो मरी तो अल्फाज का कुछ फर्क होता है, और फिर किसी शायर ने कहा कि सुनने में आधा और है, उर्दू में आधा और, तो ये भी कुछ बात है। तो टारगेट्स को देखना चाहिए। अब जाएंगे जवाब की तरफ, शाह साहब कुछ बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ा खुशी हुई मुझे यहाँ के, और अमित भुट्टो साहब ने बुलाया और मैं फाउंडर मेंबर भी उनका, और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे US पार्क ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल की फाउंडर मेंबर है, और आज हम इनको जो है वो चेयरमैन मीडिया अफेयर का एक देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, और ये हमारे चीफ गेस्ट साहब भी देंगे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। शाह साहब ने हालिया ही
10 दिन पहले अमेरिका में यहाँ से 70 बिजनेसमैनों को लेके वहाँ पे बड़ी एक एग्जीबिशन की है पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से। तो शाह साहब की निगरानी। जी जनाब, और अब आते हैं आपके सवाल के जवाब। आपकी तरफ से मौजूद मेहमान डॉक्टर नसीम उलवानी साहब, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ सर। जी सर। थैंक यू। बाकी में सवाल जिस तरह से हैं वो लूंगा, लेकिन पहले मैं जवाब देना चाहूंगा लाड़काना समाज इंडस्ट्रीज वाला, क्योंकि भाई ने बड़ी मायूसी की बात की कि मैं छोड़ के बंद करके जा रहा हूँ। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, कल मैं था लाड़काना में और मैंने विजिट किया है। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने एक स्कीम है जो कुछ ऐसे में इंशाल्लाह एग्जीक्यूट हो जाएगी, बनाई हुई है हमने। वो जो रोड है पूरा वो हम आपको बना के दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सिविल लाइन भी बना के दे रहे हैं। लेकिन आपकी वहाँ पे जो वो बलाल पैवान जेके ब्लू शेवन वो पहले मुस्लिम की भी थोड़ा चाहो तो थोड़ा वो भी थोड़ा ख्याल कर, वो भी थोड़ा आसानी करना थी, थोड़ा ताज हो गया मानो तो जरा भी था ताज। मैं जो वहाँ पे खुद गया था आवाज ये पहले तो ये जितनी भी होती थी प्लॉट में बड़ी इंक्रीमेंटल रेट्स पे होती थी, मार्केट से बहुत सस्ते प्लॉट दिए जाते थे कि लोग इंकरेज हों। उससे नुकसान ये होता है कि लोग स्पेकुलेटर घुस आते हैं, वो सिर्फ प्लॉट देते हैं बाय हुक और क्रुक, जो मोरल चीजें हैं किसी की भी सिफारिश पे वो प्लॉट दे देते हैं, या जेन्युइन बायर को वो मार्केट रेट पे बेचते हैं। फिर इसको थोड़ा सा हम रिविजिट करेंगे कि जो नई स्कीम्स आई हैं, ये तो सारी पुरानी है लाड़काना, तो उसको हम ऐसा रेट लगेंगे इंक्रीमेंटल तो हो लेकिन मार्केट से बहुत ज्यादा नीचे भी ना हो, ताकि वो जेन्युइन लोग हो जाए। लोग अलाटमेंट की एप्लीकेशन भेजते हैं तो कहते हैं हमने एप्लीकेशन दी, आपने नहीं दिया, 2 लाख 2.5 लाख 1.25 लाख रुपए में प्लॉट दिए गए हैं, अब उसकी कीमत 1 करोड़ से भी कहीं पे है, कहीं पे कम है, कहीं 50 लाख 60 लाख। तो बीच में स्पेकुलेटर की वजह से भी मुश्किल हो गया। तो आप फैक्ट्री बंद नहीं करें, इंशाल्लाह उसको ठीक करेंगे, थोड़ा सब्र करें। प्लांट खाली पे तो जाता है माँ का लग PC1 गवर्नमेंट प्रोसीजर्स PC1 में जी तकरीबन तैयार कम इंशाल्लाह एग्जीक्यूशन जल्दी शुरू थी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, सीपेक के हवाले से बात की गई, मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि सीपेक के ब्लूप्रिंट्स मैंने नहीं पढ़े कि सीपेक से क्या होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीपेक से अच्छा ही होगी, सीपेक से हमें फायदा होगा, सीपेक से हमारी जो इकोनॉमी है उसको सपोर्ट मिलेगी, हमारी जो सिक्योरिटी है उसको भी सपोर्ट मिलेगी। हम अगर अफगानिस्तान को ट्रांजिट रूट देते हैं कराची के थ्रू तो उससे हमें थोड़ा सा नुकसान होगा स्मगलिंग का, तो वही चीजें वापस हमारे सर पे लगती हैं स्मगल होके थ्रू बलूचिस्तान एंड थ्रू KPK, वही चीजें जाती हैं और वहां से वापस आके यहाँ पे हमारे मार्केट्स को फ्लड कर रही होती हैं विदाउट कस्टम ड्यूटी। तो ये हमें नुकसान तो उसका था। अब चाइना वाले चीजें भेजेंगे और वो चीजें यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी तो हमारे मार्केट को कुछ फ्लड करेंगी, वो तो पहले से कर चुकी है। आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से आ रही है, आपकी बहुत सी चीजें अभी चाइना से आ रही है, सेब भी चाइना से आ रहे हैं। आपने कहा अगर लोग काम नहीं करते तो चाइनीज सेब आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा ना खाने में, मैं तो बिल्कुल नहीं खाता, अच्छा लगता है देखने में कि चाइना का सेब है। टर्की का केला आप खा रहे हैं, आपको मजा नहीं देगा, जो पाकिस्तानी केले में मजा है वो टर्की के केले में मजा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अभी ऐसा करता हूँ आपके। तो सर मुझे नहीं पता कि सीपेक से क्या होने जा रहा है, बिकॉज अभी तक चूंकि सबसे वो छुपा हुआ है, हमें भी छुपा हुआ है। जो बताया गया है, जो परसेप्शन क्रिएट की गई है, मैं उसी पे कमेंट कर रहा हूँ। मुझे उसके ब्लूप्रिंट्स मैंने नहीं देखे, मुझे नहीं पता उसके बारे में डिटेल। तो मैं अपनी जहालत का इस टॉपिक पे बिल्कुल एडिट करता हूँ, ये मेरी जहालत है, मुझे नहीं पता कि सीपेक का क्या होने जा रहा है। प्रॉपर्टी बातें करना अच्छी नहीं बात होती, जो होगा तब देखा जाएगा। अब दूसरी बात आपने कही कि कराची साइड पर बिल्कुल खंडर बना हुआ था, खंडर बना हुआ है अभी, उस पर अभी हमने एक PC1 बनाई है 19 रोड अलग में तो सिविल लाइन हम बना के भेज रहे हैं। तकरीबन 1 बिलियन की एक प्रोजेक्ट है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं इंशाल्लाह भेजूंगा। CM साहब ने कहा था कि बना के दें, इसको रेस्टोर करना है। तो कराची साइड इंशाल्लाह यकीनन उसको छोड़ा गया और खराब हो गया। खंडर एक दिन में तो नहीं हुआ ना सर, होता गया उसमें, लेकिन अब उसको रेस्टोर करने की गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट चाहती है उसको कराची साइड को रेस्टोर करना। मैंने अपनी स्पीच पे अपने इस पे प्रेजेंटेशन में ये बात कही थी कि हम उसको रेस्टोर कर रहे हैं। कोरंगी की बात जो आपने कही जनाब, कोरंगी पे जो प्लॉट है ज्यादातर केडीए की वो स्कीम थी, तो ना तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को मिली उसकी डेवलपमेंट
اور نہ ہی وہ KDA کو دی گئی. کورنگی والوں نے اپنی ایک ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی ہے, ٹھیک ہے, جو کائٹ تھی, جو ایسوسیشن تھا, ان کی ایک کمپنی ہے, اس کو اس کے انفراسٹرکچر کو ریسٹوریشن کے لیے پیسے دیے گئے ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. ٹیوریز پہ روڈ بنے ہوئے ہیں, کورنگی والے بھی اپنا روڈ بنا رہے ہیں, اور ان کی ہم نے کہا کہ آپ فوراً سے اجازت بھی کرائے گا. ہم نے کہا کہ آپ خود بنائیں, آپ اسٹیک ہولڈر ہیں, آپ خود بنائیں. چیف منسٹر صاحب نے مہربانی کی, ان کو الگ الگ پیسے دیے کمپنی کو, جس کی پیسے تو دیے گئے, پیسے مل بھی گئے. بے شک آڈٹ سی تھی, آڈٹ پر میں فیس کر رہا ہوں, آڈٹ پر ہمارا ڈپارٹمنٹ فیس کر رہا ہے, پیسے ملے کہ بھائی وداؤٹ TC1 وداؤٹ کے گرانٹڈ ریٹ آپ نے پرائیویٹ انڈسٹریز کو کیوں دیے, پرائیویٹ کمپنی کو کیوں دیے. ان کو دیے گئے ہیں, کورنگی کو دیے گئے ہیں, نارتھ کراچی کو دیے گئے ہیں, فیروزی رجا کو دیے گئے ہیں, لادی کو دیے گئے. ان کی سب میں پرائیویٹ کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ریسٹور ہو. بالکل گنگا جمنا نہیں بہ رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کم از کم سندھو تو بہے گا. جتنا ہمارا جو یہاں کا سندھو ہے نا, گنگا جمنا ہمارے پاس ہے نہیں, جیسے سائن ہے کافی صاحب ہے, انڈس, تو وہ جو لفظ تھا انڈس, میرے علم میں اضافہ ہوا. آپ نے کہا کہ انڈس کمس فرام انڈسٹری. ہم نے جو پڑھا تھا تھوڑا سا کم پڑھا ہوگا, وہ کچھ لوگوں کو زبان کا مسئلہ تھا. سنسکرت میں سندھو کہتے تھے پانی کے بہاؤ کو, پھر کسی سنسکرت میں کسی ایک فرقے نے اس کو ہندو کہا اور ہند کہا پانی کے بہاؤ کو, اور ہند لفظ سندھو سے نکلا. اور کچھ جو پرشین لوگ تھے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے بھی اس کو ہند کہا. تو ہند سندھ ایک ہی لفظ ہے, اس کی لفظی معنی ہے پانی کا تیز بہاؤ. اور ایک جو لفظ سنسکرت میں انہوں نے لکھا, جہاں پہ ان کے ویدا, جو ان کے 4 ویدا لکھے گئے, وہ سندھ اور پنجاب کی زمین میں لکھے گئے, جس کو انہوں نے لفظ کہا تھا سپتا سندھاوا. جیسے میں صاحب نے کہا, تو میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کی پڑھا ہوا ہے ہسٹری, اینشین انڈیا کی میں نے پڑھی ہوئی ہے, تو تھوڑا سا بتا دوں کہ سپتا سندھاوا مطلب 7 دریاؤں کی زمین, جو کہ موجودہ سندھ اور پنجاب, اور آگے جا کے جس سے دریائے سندھ بنتا ہے دریائے کابل, اور یہ چیزیں سب مل کے بجائے سپتا سندھاوا. تو جو پاکستان ہے موجودہ, مجھے کہنے دیجیے, وہ اینشین سندھ ہے, جو قدیم سندھ تھی وہ بائی ڈیفالٹ پاکستان کے نام سے ریسٹور ہوا, اور ہمارا سندھ بحال ہوا. نام اس کا کچھ اور ہے یہ سندھ, چونکہ سرائکی زبان, ہماری جو سرائکی زبان ہے جو کہ سندھی کا ایک لہجہ تھا, اب انڈیپینڈنٹ زبان بنی جا رہی ہے, وہ 4 صوبوں میں بولی جاتی ہے. جہاں جہاں پہ دریائے سندھ ہے وہاں وہاں سرائکی بولی جاتی ہے, KPK میں بولی جاتی ہے, پنجاب میں بولی جاتی ہے, سندھ میں بولی جاتی ہے, بلوچستان میں بولی جاتی ہے. تو یہ جوڑتی ہے 4 صوبوں کو سرائکی زبان. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ دریا. تو یہ بات آپ نے کہا انڈس وہاں سے لفظ آیا. ہو سکتا ہے سر میرے علم میں اضافہ ہوا, لیکن اچھا ہے آپ نے کہا. لیکن نفرت ہم نے ڈیل دیا, جیسے ہمارے جو سیکرٹری نے کہا, ہم نے ان کو 0 بھی دیا سر. پورا کیلکولیٹر اور آپ کی پورا کمپیوٹر 0 کی وجہ سے ہے, ورنہ رومن کے آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ایکسل, وہاں پہ آگے وہ ان کی گنتی ختم ہو جاتی ہے. اگر 0 نہیں ہوتا تو ان کی آگے بڑھتے نہیں ہے. 0 کی وجہ سے ان کی اب بالکل جو ہے انفینٹی کی طرف چلی گئی. That is because of the 0 which was given by Indus, my lovely Indus and Sindh. تو باقی سوالات جو آپ کے ہیں, ہینڈی کرافٹ سر, ہینڈی کرافٹ سے بہت پہلے سے کام ہو رہا تھا. میں آپ کو ڈیٹیلز دے دیتا ہوں. ہینڈی کرافٹ میں جو گورنمنٹ کے انٹرونشنز ہیں, اس میں آرٹیزنس کالونی بنی گئی ہینڈی کرافٹس کو انکریج کرنے کے لیے. کشمیر میں, خیرپور میں 2 ہیں, نصر پور میں جہاں پہ اجرک اور یہ چیزیں بنتی ہیں, کاشی کا بھی کام نصر پور میں ہوتا ہے. حالہ میں بھی ہم نے کی, اور ایک اور ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں. حالہ میں ایک اور ہم کو ورکشاپ اور ان کو گھر بھی دے رہے ہیں حالہ میں. وہ اسکیم ابھی لانچ ہونے کے لیے تیار ہے, گھر بن گئے, ورکشاپ بن گئے. اس کی چونکہ آج کل نیب کا ڈر ہے, تو ہم نے ایک پروکیورمنٹ کمیٹی ایسی بنائی ہے جس میں کمشنر احتماد ہیڈ کریں گے, اور نیب کا اس پر ایک ہوگا, تاکہ کل ایک ہم چیز دے دیتے ہیں, گڈ فیتھ کے بعد دیتے ہیں, کہتے ہیں اس میں کرپشن ہو گئی, تو ہم نے کہا بھی آپ خود آ کے اس کو کرو یار, اس کو, تاکہ لوگوں کو مل جائے, تاکہ کام آگے بڑھے. ٹھیک ہے نا. ایک ہی ہنڈرنس ہے نا, یہ ایکسٹرنل فورسز ہیں, یہ ایکسٹرنل جو چیزیں ہیں جو چیزوں کو روکتی ہیں. پروکیورمنٹ جب تک نہیں ہوتا تھا, سپرا نہیں ہوتا تھا, تو پروکیورمنٹ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کرتی تھی. اس وقت بھی کرپشن تھی, اس سے بچانے کے لیے سپرا بنا اور پپرا بنا. آج اس سے زیادہ کرپشن ہے.
जो जाफरानी साहब ने बात की ना, हम लोग मसाइल को एड्रेस करने की बजाय नई मस्जिद बना लेते हैं, उससे मसाइल हल नहीं होते। लोग तो वही है ना भाई, HR क्वालिटी स्टेप तो वही है ना, उन्होंने लोगों ने चलाना होता है। एजुकेशन की आपने जरूर बात की, स्किल डेवलपमेंट के 2 इंटरवेंशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है, एक स्टोबिटा और एक बेनजीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम। खुशकिस्मती के साथ 1.5 साल में उस प्रोजेक्ट का हेड रहा हूं। उसको हमने छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज 4 महीने के और 1 साल के भी उसको हमने कहा, जो स्टेबिटा के पल्लू में नहीं आते थे, वो अलग से अभी भी काम कर रहा है। उसमें अच्छे खासे लोग हमने आउटसोर्स किया हुआ है, हमने कारीगर को आउटसोर्स किया हुआ है, हमने हुनर फाउंडेशन को किया हुआ है, हमने अमन टेक को किया हुआ है, हमने जेपटेक, उसकी वजह से जेपटेक बनी है, जो जुल्फकार अली यूनिवर्सिटी वालों ने जेपटेक बनाई जिसकी आउटरीच ज्यादा है। क्योंकि कारीगर की लिमिटेशन थी, वो कारीगर कराची से बाहर नहीं जा रहा था। हुनर फाउंडेशन कराची में है और टंडो अलयार में, आपकी अमन टेक सिर्फ कराची में है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के वो स्किल्ड लोग अभी वो बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको आउटसोर्स करते हैं हम लोग। बाकी जेपटेक अभी लाड़काना में भी है, हैदराबाद में भी है, वो भी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ चूंकि नौकरी सर्टिफिकेट पे मिलती थी, तो उसलिए काफी कल्चर बहुत बराबर हो गई ताकि सर्टिफिकेट मिल जाए। अब लोगों के पास सर्टिफिकेट है, इल्म नहीं है उनमें, कोड़े के कोड़े हैं। जो तालीम आपके दिमाग को चेंज करती है, डिस्टर्बेंस आती है, आप दूसरे एक्सपीरियंसेस लोगों के तालीम के थ्रू लेते हैं। एक्सपीरियंस के 2 सोर्सेज हैं, एक आपका अपना जाती तजुर्बा और दूसरा तजुर्बा जो आप किताबों से लेते हैं। बहुत ज्यादा जो लोग अकलमंद थे उनके एक्सपीरियंसेस आप जब पढ़ते हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस आप अपने आप पे जम करते हैं, तो आप यू गेट मोर वाइज, आप ज्यादा अकलमंद होते हैं। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो कागज का टुकड़ा लेके घूमते रहेंगे तो आप ना तो वाइज होंगे ना आपको समझ आएगी। ये काफी कल्चर, ये ऐसी तबाही है जो अब हो गया है। पब्लिक सेक्टर में सर एजुकेशन की स्टैंडर्ड खराब है, वैक्यूम कभी नहीं रहता, इसलिए आपका जो सिस्टम है आपके साथ पैरेलल में कैमरे सिस्टम आ गया हुआ है, दूसरे सिस्टम्स आ गए हैं और प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगी जरूर है, लेकिन एजुकेशन अब ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ ठीक है, अच्छे स्कूल्स भी हैं, स्कूल्स उसको तालीम दे रहे हैं। बहुत ज्यादा हो गए हैं स्कूल्स पब्लिक सेक्टर में भी, तालीम उसमें नहीं रहा, इल्म उसमें नहीं रहा। पहले एक अलीगढ़ ने आपको पाकिस्तान बना के दे दिया, तो अभी मेरे ख्याल में अलीगढ़ के लेवल के 2-4 तो यूनिवर्सिटियां हैं हमारे पास, तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। यकीनन खराबी आ गई, एक खराबी आ गई है, उसको लोगों ने एहसास किया है। अब जो बेचारे ने काफी कल्चर के बाद अनपढ़ था, उसको एहसास है अपने बच्चे को पढ़ा रहा है और अच्छी से अच्छी तालीम दे रहा है। खुद लोगों में एहसास हुआ गया हमने ये गलत काम किया और अब वो बच्चों को तालीम में बहुत लोगों को पैसे खर्च हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पब्लिक सेक्टर में अगर होती अच्छी चीजें तो लोगों के पैसे खर्च नहीं होते। होपफुली पब्लिक सेक्टर में ये चीजें ठीक हो जाएंगी। इसकी डेवलपमेंट में मैंने बता दिया, दो स्कीमें हैं। स्टेबिटा अभी रिस्टोर हो रही है JIV के साथ, जर्मन वालों के साथ। जर्मन गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने यहाँ पर इनको सपोर्ट किया हुआ स्टेबिटा को, और स्टेबिटा के जो पॉलिटेक्निक और मोनोटेक्निक इदारे हैं उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। उसमें खराबियां हैं, यकीनन खराबियां हैं। तो आपने कहा कोलंगी से लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि कोलंगी में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें उन्हीं को दिया हुआ है, होपफुली नहीं जाएंगे। अब लाइन वाटर तो मुझसे पहले बेहतर कबाली साहब बता सकते हैं। लाइन वाटर मेरे ख्याल में जो 5 साल पहले था उससे तो बहुत अच्छा है, आजकल बहुत बेहतर है। लेकिन जैसे गरीब है, गुर्बत है, छोटे मोटे क्राइम को रोकना पॉसिबल शायद मेरे ख्याल में नहीं होगा जमाली साहब। बेरोजगारी जितनी कम होगी उतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होगी सर। तो वो तो जमाली साहब बैठा उनसे मैं कहूंगा कि आपको बता दो उसके ऊपर लाइन मैं नहीं बता सकता। बाकी बात आपने कहा एग्रीकल्चर रिसर्च, सर एग्रीकल्चर रिसर्च के इदारे हैं, टंडोजाम में भी है और फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है जहाँ पर भी एग्रीकल्चर में रिसर्च हो रही है। शायद आपके तवक्को के मुताबिक नहीं हो रही होगी, लेकिन उन्होंने काफी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में काम किया हुआ है और उसकी वजह से काफी चीजें आई हुई हैं। बाकी लोगों को भी हमने चीजें की, चाइना की, जैसे हमने गंदम में तजुर्बा किया, चाइना का बीज हमने कहा कि जी हम गंदम में लगाते हैं, बीज पर लगाते हैं। मेरा सब्जेक्ट नहीं है, पता है तो बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत हमारी जमीन अपनी भी है, फ्लॉप हो गया, ठीक है। हमने कहा हम तजुर्बा करते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग में, हमने कहा ये फार्मी जो मुर्गियां हैं सर, ये इसकी लाइफ बहुत कम होती है,
ये गर्मी झेल नहीं सकती, टफ होती है उनके लिए, तो उसके लिए मिक्सचर किया हमारे फिशरी लाइफ स्टॉक में, फार्मिंग और लोकल मुर्गी को मिलाप करा के उन्होंने एक, आपको लगता है कि देसी मुर्गी और देसी अंडे हैं जो उससे मिलते हैं, उसको कहते हैं मिश्री। मिश्री एक शक्ल है जिसका सर्वाइवल रेट ज्यादा है लेकिन वो अंडे कम देती है। जो अंडे ज्यादा देती है उसका सर्वाइवल, जिंदा रहने की रेट कम है। ठीक है सर, तो वो ये भी हमें करना चाहिए, तो सर्वाइवल भी तो होना उसका, लेकिन उसकी जो क्वालिटी, जो गोश्त की क्वालिटी भी अच्छी है, उसके अंडे की जो फूड क्वालिटी वो भी ज्यादा अच्छी है बनिस्बत फार्मिंग के। हमें सिर्फ क्वांटिटी की तरफ भी नहीं जाना चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए, और क्वालिटी के लिए आपको थोड़ा सा ये चीजें भी करनी पड़ेगी। तो क्वालिटी में भी जैसे हमने कहा ना, इनकलाब आ गया, उनका नुकसान भी आ रहे हैं, तो ये चीजें भी है जिसका अभी मार्केटेबल नहीं। फ्रूट्स में होना चाहिए, कितना होना चाहिए जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो, मेरे ख्याल में लोग कर रहे हैं काम, प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं। हमारे एक मुजामन साहब हैं, वो उन्होंने कॉर्पोरेट फार्मिंग की है टंडोजाम में, और टंडोला साइड पे उनका है, उसका भी, बाकी लोग भी हैं, हमारे कुछ सईद फरादी के कुछ नदीम शाह है, बाकी लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर हमारा टंडोजाम यूनिवर्सिटी भी कोई तो दराल काम कर रहा है। इसके लिए जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर रिसर्च होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उसमें दिया हुआ है, लेकिन जो रिसर्च दुनिया में होती है, जो थिंक टैंक्स दुनिया में होते हैं वो यूनिवर्सिटीज में होते हैं। मास्टर्स की डिग्री लेने के लिए आपको एक रिसर्च पेपर देना होता है, हर बच्चे को यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर देना होता है, जब भी आपको मास्टर्स की डिग्री मिलती है। तो सबसे बड़े और सबसे अच्छे थिंक टैंक्स और रिसर्च सेंटर्स आपकी यूनिवर्सिटी हैं। हमारा थोड़ा सा लिंकेज नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ। मैं जब होम डिपार्टमेंट में था तो हमने खिलवाजी जो थी कराची, उनके साथ एक लिंकेज बनाया था, साईं को पता होगा, और हमने एक उनके साथ जो भी वीसी बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के, उनको हमने अपना एक पेपर बनाया था, और कुछ लोगों को कहा था कि हम एक थिंक टैंक बनाएंगे, और उनकी जो कि एक्चुअली सोशल डिपार्टमेंट थी, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट थी कराची यूनिवर्सिटी में, जो खिलवाजी डिपार्टमेंट उसी से लगी है, उनके साथ हमने एक लिंकेज बनाया कि उनसे जो उनकी रिसर्च है उनसे हम थोड़ा सा इनपुट लें और फिर पब्लिक के साथ शेयर करें। तो वो काम वो भी उस पर हो रहा है। रिसर्च यूनिवर्सिटीज में होगी, रिसर्च इदारे जो होते हैं उनमें होती है, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च प्राइवेट इदारे भी कराते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनियां खुद रिसर्च कराती हैं, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उनको फिर 10 साल के लिए कॉपीराइट का एक होता है प्रोटेक्शन, कि वो चीज जिस पे रिसर्च का खर्चा होता है उस कॉपीराइट की वजह से अपने रेट्स पे वो चीजें भेजते हैं, और 10 साल के बाद वो ओपन होता है और वो सबके लिए होता है कि वो चीज बना लें। तो ये रिसर्च प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में रिसर्च नहीं होती सर, प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च होती है, और प्राइवेट सेक्टर में कुछ ना कुछ हो रही है। मजीद गुंजाइश की जरूरत है, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वी आर अ ग्रोइंग नेशन, वी आर अ डेवलपिंग नेशन। तो ये तो हुई एक बात, किसी ने भी नहीं कही जो मैंने अपने उसमें कही थी सर, थोड़ा सा खुदा के वास्ते, लेकिन मजा बलन, थोड़ा सा पॉपुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें, खुदा के वास्ते पॉपुलेशन पे। आप सबको पता है ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान की, जिस रेट के साथ हम बढ़ रहे हैं। जब हम 7 करोड़ थे तो 7 करोड़ के रेट के हिसाब से ग्रोथ हो रही थी, अब हम 22 करोड़ है, अब 22 करोड़ के रेट के हिसाब से ग्रोथ होगी, तो 10 साल के बाद हम कहां खड़े होंगे, 20 साल के बाद हम कहां खड़े होंगे, और मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन होगी उस वक्त हमारी। जमीन भी वही होगी, पानी भी वही होगा, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कह रहे हैं पानी भी कम हो रहा है, पीने वाले ज्यादा हो जाएंगे, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे, क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा मैं इसके अलावा कह रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने बात की थी, किसी ने कमेंट ही नहीं किया, और हम लोग तो खुश रहेंगे, बाहर में तो बी शादी कर, टी शादी कर, छोटी शादी कर, तबे कब लगे तो बात शोर के लिए सके। अच्छा, लाड़काने की मैंने बात कर ली, स्किल की बात कर ली। हेवी व्हीकल ट्रेनिंग, ये BBSYDP ने शुरू किया था प्रोजेक्ट हेवी व्हीकल ड्रेनेज के लिए, ट्रैवल्स के लिए, लेकिन हमें कोई पार्टनर नहीं मिला। हमने कहा था कि हमें दिया जाए, मैं जब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर था तो हमारे उनसे बात भी हुई थी कि आप हमें मेहरबानी करके हमारे बच्चों को ये सिखाएं और उनको लाइसेंस दें, ताकि जो बड़ी बड़ी ट्रॉले हैं और वो चला सके। लेकिन हम फोकस एग्रो को भी थोड़ा सा भी एग्रो ने किया हुआ है कि अभी जो थर्ड में जो काम हो रहा है वो एग्रो ने उनकी ट्रेनिंग दी हुई है प्राइवेट सेक्टर में, वहां पे अब मशीनरी जो है उनकी जो है जो कोड में इस्तेमाल हो रही है, वहां की औरतें भी चला रही हैं। कुछ कोड़ी लड़कियां हैं जो ये ड्राइविंग का काम कर रही हैं, जो कि मर्दों को मुश्किल लगता है, वो औरतें भी कर रही हैं। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत बड़ा भी नहीं है, थोड़े बहुत इंटरवेंशन तो है, लेकिन एक थोड़ी सी
थोड़ी सी परसेप्शन जो सिंध गवर्नमेंट के हवाले से है, हम जब जाते हैं सर इस्लामाबाद जाते हैं, फेडरल गवर्नमेंट की मीटिंग्स में जाते हैं, सर मैं बता रहा एक बड़ा, वहां पे कहते हैं आप लोगों की कैपेसिटी नहीं है। मतलब पहले उनका होता है कि आपका कैपेसिटी नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद आपके कैपेसिटी नहीं है कि आप चीजों को संभाल सकें। ठीक है सर, तो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप मुझे ज्यादा जानते हो, लीगल लोग भी बैठे हैं, 18वीं तरमीम में आपने नया हमें दिया क्या है? सिंध गवर्नमेंट को क्या दिया है आपने जिसकी आप कहते हैं कि हमें कैपेसिटी नहीं है? कंकरेंट लिस्ट थी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कर रही थी और फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही थी, वो कंकरेंट लिस्ट फेडरल लेवल पे खत्म हो गई। कोई नई डिपार्टमेंट नहीं बनी 18वीं तरमीम के बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। एक शायद डिपार्टमेंट बनी होगी जिसको इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जो शायद उन चीजों को देख रही हो, अदरवाइज कोई भी नई डिपार्टमेंट नहीं बनी 18वीं तरमीम के बाद। वो सारी डिपार्टमेंट्स हैं, 2 हॉस्पिटल हमें एक्स्ट्रा मिल गए होंगे, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के 2-4 इदारे मिल गए होंगे, फेडरल गवर्नमेंट जो चला रही थी। इसी तरह से कुछ एग्रीकल्चर के और लेबर में वर्कर वेलफेयर बोर्ड का कुछ एक यूनिट हमें मिल गया होगा, जो सिंध का चैप्टर था वो मिल गया होगा। लेबर डिपार्टमेंट तो पहले से काम कर रही थी ना, नया क्या मिला है जिसके लिए कहते हैं कि कैपेसिटी नहीं है? कैपेसिटी बिल्कुल है हमें। हमारी ब्यूरोक्रेसी को बहुत मिलाइन किया जाता है, जबकि आपको पता है कि 60% जो हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है वो फेडरल गवर्नमेंट से आती है, फेडरल सर्विसेज के लोग आते हैं। तो आप खुद कह रहे हैं कि आपके फेडरल सर्विसेज जो लोग हैं 60% उनमें कैपेसिटी नहीं है। 40% इज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, 60% कम्स फ्रॉम जो टॉप ब्रास है, जो 60-20 एंड ऑनवर्ड्स जो है वो 60-65% कम्स फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या खुद कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के लोगों में कैपेसिटी नहीं है? वही फेडरल गवर्नमेंट का आदमी बाकी सूबों में काम कर रहा है तो उसमें कैपेसिटी है, और फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो कैपेसिटी है। सिंध में आते ही क्या उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है? तो थोड़ी सी चीजें हैं सर, जो परसेप्शन भी जो क्रिएट की जाए, मुझे नहीं पता क्यों की जाती है। काम भी हो रहा है, डिपार्टमेंट्स काम भी कर रही हैं, नेगेटिव्स की ज्यादा आ रही है मीडिया में। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल के पीछे डेथ टोल काउंट करना शुरू करें तो लोग मरते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, आखिरी स्टेज पे आते हैं। एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूं, और जो राइट टाइम टू द राइट जॉब आपने कहा था, मैं डॉक्टर, लेकिन मैंने कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास किया था, उसके थ्रू मैं सिविल सर्विस में आया था। तो आई एम ब्यूरोक्रेट, वो डॉक्टरी वाली काम पीछे रह गई, वो सबके लिए ओपन हार्ट भी है, डॉक्टर्स भी हैं। तो मैं ट्रेन ब्यूरोक्रेट के तौर पे काम कर रहा हूँ, मुझे 27 साल हो गए ये काम करते हुए। नथिंग न्यू फॉर मी, यही मैनेजमेंट ही। तो बाकी जो आपने कहा था कि राइट टाइम नहीं है, बिल्कुल है। हर डिपार्टमेंट में हमारे सेक्रेटरीज के और सेक्रेटरी के अलावा जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं उसी स्किल के लोगों को दी जाती है, बाहर के लोगों को नहीं दी जाती। सिर्फ मैनेजमेंट जो है, अब मुझे नहीं पता वो भी कभी खत्म हो जाएगी, कि सेक्रेटरीज या सेक्रेटरीज में जो स्टाफ है वो, और शायद कुछ डायरेक्टर जनरल्स जो नॉन टेक्निकल है, वो ब्यूरोक्रेसी को दी जाती है कि आप उसको मैनेज करें, जिसके लिए डिफाइन कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। मसलन मुझे नहीं पता कि लिए अगर है मिसाल के तौर पर, उसका डीजी ब्यूरोक्रेट बनता है, उसके लिए मल्टीपल फंक्शन उसके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी काम कर रहे होते हैं, मास्टर प्लान वाले भी काम कर रहे होते हैं, आर्किटेक्चर वाले वही जो होते हैं, और वो भी काम कर रहे होते हैं, लैंड वाले भी काम कर रहे होते हैं। तो उसको हेल्प करने के लिए किसको हमने, तो इसलिए ब्यूरोक्रेट टॉप पे आता है, जो मैनेजमेंट में ट्रेंड होते हैं, वो डीजी बनता है। इस टाइप जहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन है, वहां पे हेड करने के लिए ब्यूरोक्रेट को लगाया जाता है। जहां पे सिंगल है, जैसे एग्रीकल्चर के जितने भी डीजी हैं वो एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स हैं, उसमें कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है। इरिगेशन के जितने भी चीफ इंजीनियर हैं सारे के सारे वही है भाई, पर्सनल सर्विस में जितने इंजीनियर हैं वही हेड कर रहे हैं उनको। ऊपर सेक्रेटरीट वाले, चूंकि सेक्रेटरीट में बजट होता है, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, इसलिए ब्यूरोक्रेट को रखा जाता है। ही इज ट्रेंड इनटू दिस। हो सकता है आगे चल के एचआर बन जाए, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आगे चल के हो सकता है बने ना बने, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये लोग तो कैटर करते हैं। बाकी इसके अलावा क्या रहा सर, मैंने आपको बता दिया, मेरे ख्याल में सारी चीजें कवर हो गई, तो रह गई तो बता दें। सर बहुत शुक्रिया। शायर ने कहा कि कमरे में बिखरा हुआ सामान वगैरह, खत ख्वाब किताबें गुलो गुलदान वगैरह, इनमें से कोई हिज्र में इमदाद तो आए, जिन देव परी खिज्र या लुकमान वगैरह, तू आए तो गठड़ी में तुझे बांध कर दे दूं, दिल जान नजर सोच ये ईमान वगैरह, बस इश्क के मुर्शिद से जरा खौफ ज़दा हूं,
झेला है बहुत, वैसे तो नुकसान वगैरह। बिजनेस पर्सनैलिटी बहुत मारूफ कारोबारी शख्सियत मोहतरमा किरण इकबाल साहब हमारे साथ इस सफर में रही, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल रहे। वोट ऑफ थैंक्स के लिए मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम अनवर सानी साहब से, चीफ पैट्रन है आप पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के, मारूफ बिजनेसमैन है, कि मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम तो कर चुके थे हम आप सब दोस्तों को, अब जो है ना एंडिंग पे है। सबसे पहले मैं सतो साहब का शुक्रिया अदा करूंगा और जमाली साहब का जो कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, और आप लोग सब हमेशा हमारा साथ देते हैं। आप पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब के मेंबर भी हैं, हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, ये सब आपको एजाज आता है हर इस पूरी क्लब को, पाकिस्तान एक्सीलेंस क्लब को आगे ले जाने में, और उम्मीद है इसको और भी आगे लेके जाएंगे। और जो भी जैसे तकरीबात होती हैं उसमें हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपने मेंबर भी बढ़ाएं, अपने दोस्तों को जो पुराने दोस्त हैं उनको भी बुलाएं, तो हमारी तकरीबन हाजिरी कंप्लीट होती है, उसका अगेन शुक्रिया। और अब टोटल जो है हमारी पूरी तकरीब का क्रेडिट जो भुट्टो साहब को ही जाता है, और मैं इसको अब इस तकरीब को एक एंडिंग पे लेके जाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। और हमारे मौजूद मेहमान के लिए पाकिस्तान एक्सीलेंस अवार्ड, पाकिस्तान एक्सीलेंस ऑफिसर्स अवार्ड, जो कि पाकिस्तान एक्सीलेंस की जानिब से उनकी पजीराई के लिए, उनकी खिदमत का पाकिस्तान एक्सीलेंस ऑफिसर अवार्ड हमारे मौजूद मेहमान के लिए जो यहाँ पर अपने कीमती वक्त में से तशरीफ लाए, और आप चूंकि डॉक्टर भी हैं और